I'm very happy that I have interacted with very few Indian women, those who have done very good. And thank you so much. Your journey was really incredible. You and Manju Yagnik ma'am from Nahar Group. These are the two ladies I have seen in India, those who have done par excellence work. So first of all, congratulations for that. Thank you. Okay, so on behalf of Win-Win Training, I want to welcome you, ma'am, for the interview related with Real Estate Game Changer book. And we are very fortunate that we have you for interview, because we were interviewing so many CEOs. Just before 2 days, we have interviewed the director of Kumar Properties from Pune. They are present in Bangalore, Pune, Mumbai. Every interview is going good, but I was waiting for your interview. Our entire audience is waiting for your interview, just because of a simple reason, because very few Indian women have done very good in real estate industry, and you are one of them. So we are fortunate enough. Welcome and congratulations. Thank you very much for all your kind words and a beautiful introduction. Well, I don't think that, being a woman, I have done something unique. I think I have just tried to do my job well and do my responsibilities to the best of my abilities. But thank you so much for the recognition and the love and the praise and appreciation that the industry gives to me. I was also looking forward to this interview very much, because I also come across very few PhDs in real estate, and that too in consumer behavior, which is my favorite subject as well. So it's lovely to be interacting with you, Dr. Maurya. Thank you so much, ma'am. Thank you. Hearing those words from you is really makes a difference in our life. Now we'll move towards the research-based questions what we have designed for the entire book. And in just 1 minute, I'll introduce you about this book. This book is entirely based on taking interviews of top 50 CEOs, knowing about their leadership strategies, knowing about their working pattern, how they work with their team, so that the upcoming real estate entrepreneurs, they can know that what is actually going on in the industry and what are the best practices of this industry related with leadership, team development, strategy making, and sales. So for that purpose, we were conducting interviews of more than 50 CEOs across India and globe now. And we are fortunate to have you. Now, the first question related with our interview is, we want to know about your journey, your life journey and your real estate journey. Okay, wonderful. So as far as the life journey is concerned, I was born into an army family. I moved all across the country, and finally, found a base in NCR. At that time, my father was in the army headquarters, and I joined college at Miranda House in Delhi University. I was a science student there. And while I was there, I realized that, if I have to do anything in the corporate world, it has to be in a metro. Before that, I had mostly been in cantonments with my parents. And, while the experience was fantastic, sometimes you're in Gangtok, sometimes you're in Bikaner, you're in Sikandrabad, you pick up languages, you get a better understanding of people. So all of those, Allahabad has its own flavor, Belgaum has its own flavor. So that variety was very interesting during my growing up years. And it developed a fondness and inquisitiveness, like I just mentioned a little while ago about behavior, so that communication and behavior, I think, just came naturally to me because of the way I was growing up. And then, of course, I got married, and once I got married, then again the base was here in Delhi itself. Okay. And my father-in-law is also from the army, so both me and my husband were working in Delhi as well. And then, along with my studies, I completed my MBA, I did my B.Ed, I did my computer applications courses and various other things I kept doing. I did an MA in English literature, and then finally my PhD. All of this with my job. Okay. My first taste of real estate, I was very fortunate to be in an organization which actually valued talent rather than being focused on gender. So I started my journey in real estate with DLF, and I had the privilege of being their sales head, of being the person to start their retail leasing vertical, lot of new opportunities. Super. And then I became the chief executive for Emaar MGF. After that, I was the country head and senior director for DMAC.
And presently I'm the senior executive director of Experion. So in 31 years, this is my 4th job only. So I have been choosy, and but I have had lovely organizations, wonderful colleagues. You are right that mostly it has been, I have been working with men, I have been competing with men, I have been learning from men. There's no doubt about that. But I have made it a point during my journey to handhold and help out as many women as possible, in whichever manner I can. But your initiative is wonderful, because documenting it, it's a very different thing altogether, And so heartiest congratulations to you for that. Thank you, ma'am. Thank you so much. And we want to tell our audience कि आप सबके लिए इससे अच्छा practical experience नहीं हो सकता कि DLF, DMAC, Experion, सब बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ मैम ने काम किया है, और मैम के एक्सपीरियंस को आप सबके लिए हम लेकर आए हैं इस पूरे इंटरव्यू के थ्रू, और हमारी बुक के थ्रू हम ऐसे 50 लाजवाब इंटरव्यूज आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। तो पूरा इंटरव्यू पे फोकस कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि who is being your influencer or mentor for coming in this industry? See, when I joined the industry in June 91, Amol ji, at that time ऐसा कोई role model नहीं था मेरे लिए, whether a man or a woman, I'll be honest, ऐसा नहीं था. But yes, during the journey, I tried to learn and absorb the good qualities and the good behavior that I saw in different people. कोई भी perfect नहीं होता है, तो एक one mentor नहीं हो सकता है, लेकिन अगर किसी की analytical ability आपको पसंद आती है तो आप सोचते नहीं, if I have to grow, I should also have this. अगर आपको किसी का people connect strong लगता है या relationship management strong लगता है, तो आप सोचते हैं कि नहीं, हमें भी अगर हम में ये कमी है तो हमें पूरी कर लेनी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन करती रही पूरे रास्ते, और अपने को बहुत क्रिटिकली देखती थी मैं। आई यूज्ड टू रियली सी हाउ कैन आई बी बेटर, व्हाट इज मिसिंग, and if I found something good in others, and that even now, I have been very generous with my praise for anybody's good qualities, and ऐसे ही चलता रहा। बेसिक फाउंडेशन अमोल जी घर पे बनी, सो आई थिंक मैक्सिमम क्रेडिट तो आप पेरेंट्स को ही देते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स को ही देते हैं, बिकॉज दे गिव यू द फ्रीडम टू फ्लाई एंड दे गिव यू द सपोर्ट व्हेन यू नीड इट, क्योंकि एक मदरहुड भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया होता है आपकी लाइफ का, और उस स्टेज पे आपको अपने बच्चे की भी बहुत फिक्र होती है। सो फॉर माय सन, माय पेरेंट्स एंड माय इन-लॉज वर ऑलवेज देयर, सो विलिंग एंड मतलब वो जिस तरह से उन्होंने हम लोग को पाला, उससे भी ज्यादा ग्रैंडर वे में ग्रैंड पेरेंट्स बन के उन्होंने वो किया, तो उस वजह से आई कुड फोकस ऑन माय ड्रीम्स, अदरवाइज शायद नहीं हो पाता। एक वो एरिया कई लेडीज का मैं देखती हूँ कि काफी करना चाहती हैं, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होते कि वो कर पाए। वो एक मेरे पास बेनिफिट था। तो एक तरह से वो ही मेंटर्स हैं, पेरेंट्स, इन-लॉज, ग्रैंड पेरेंट्स, और उनके लिए ही रिस्पेक्ट है। वैल्यूज भी आप घर से ही सीख के आते हैं, क्या किस तरह से आपने बात करनी है, किस तरह से आपने पहनना ओढ़ना है, किस तरह से आपने दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, बिकॉज इंटेलिजेंस तो आपके दो कानों के बीच में है और वो सभी के पास होती है, लेकिन बहुत सारी और क्वालिटीज होती हैं जो जरूरी होती हैं, जिसकी वजह से आपको आसपास वाले रिस्पेक्ट कर सके और आप खुद को रिस्पेक्ट कर सके, तो जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका जवाब। और जितने सीईओ से हम लोग बात कर रहे हैं, सभी के मेंटर्स या उनके लिए इंस्पिरेशन उनके फैमिली मेंबर्स है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, इसलिए आज वो यहाँ तक पहुंचे, और यही जवाब आपसे भी मिला। सो एक व्यक्ति की सफलता में उसकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, जितना सपोर्ट फैमिली से मिलता है, स्पेशली एज अ वुमन वर्क लाइफ बैलेंस में अगर आपको फैमिली से सपोर्ट मिल जाए तो शायद ग्रो करना ज्यादा ईजी हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, 31 ईयर्स का प्रैक्टिकल रियल एस्टेट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ पूरे एंड तक। मैम से कुछ और अच्छे सवाल मैं पूछने वाला हूँ। मैम, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्रू आउट योर जर्नी बहुत सारे की फेलियर्स और कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, आपने उनके साथ कैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डील किया? कुछ एक दो एग्जांपल आप बताना। अमोल जी, गॉड वाज काइंड, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि
As far as work is concerned, work के जो challenges थे वो कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई कभी भी. I looked at it as a challenge. I found the difficulties also exciting and I overcame them. In fact, काफी कुछ मैंने अपनी TED Talk में भी cover किया है Edge of the Precipice में, क्योंकि वो आती रही दिक्कतें और उनको मैं हैंडल करती रही, क्योंकि वही लाइफ है. लाइफ ये नहीं है कि आपको बस खुशियां ही खुशियां, तो वो कभी खुशी कभी गम दोनों ही चलते हैं. तो वो आते रहे चैलेंजेस और उनके साथ हिम्मत से और अपने को स्ट्रॉन्गर बना के और थोड़ा इंटेलिजेंटली, कभी विट के साथ, कभी ह्यूमर के साथ, कभी डिस्ट्रैक्शंस के साथ. अगर स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है, आप म्यूजिक कर लें, आप डांस कर लें, कुछ कर लें आप अपने लिए, जो भी चीज आपको सेटिस्फैक्शन देती है, कभी सोशल सर्विस, तो आप बैलेंस करके लाइफ वो चैलेंजेस आप डील कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन जरूर आती हैं जहां पे आप नहीं कर पाते, क्योंकि आप में ही वो कमी है. जैसे कि आप, अब एक मेरे को लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कन्फ्रंट करने वाली पर्सनालिटी है मेरी. जो भी है सामने सामने ही मैं बोलूंगी. जूनियर्स जो आपके होते हैं उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि she doesn't like this because of this reason or she likes this because of this reason. सीनियर्स भी मेच्योरिटी होती है, वो आपको समझ सकते हैं उस स्टेज में. लेकिन जो आपके कोलीग्स होते हैं, ये जो आपके बिल्कुल तरा ऊपर वाली जो सिचुएशन होती है एक तरह से, जिनके साथ आपको रोज वर्क करना है, वो हर पर्सनालिटी अलग होती है. तो जरूरी नहीं है कि आपकी ब्लंटनेस या आपकी ट्रांसपेरेंसी या आपकी ऑनेस्टी उसी तरह से हो. प्लस देखिए, पिरामिड तो ऐसे है, तो एक कोई कहीं भी आप बैठे हो, नॉन स्टॉप आपकी बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग, ये भी एक पार्ट ऑफ ग्रोथ है. और उस चीज के साथ आपने ग्रेसफुली कैसे डील करना है, एंड वो आपको जो डीलिंग करनी है, वो मैंने ये जो लेसन सीखा है, परफॉर्मेंस आपकी इतनी अच्छी हो कि इतना ऊपर आप जाएं कि आपकी परफॉर्मेंस देख के ही जो आपकी बुराई भी कर रहे हैं उनको खुद ही छेप आ जाए. क्योंकि आप उनके लेवल पे नहीं जा सकते हैं. पहली बात तो आपको पता ही नहीं आपके बारे में क्या उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है, तो आप क्या बात करेंगे. क्योंकि आपके सामने आके तो कुछ नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि क्या ही बोलेंगे, झूठ तो आपके सामने नहीं बोला जा सकता है. लेकिन जो आपके पीछे बोला जा रहा है वो काम आप नहीं कर सकते हैं. आप सामने जाके भी किसी की बुराई नहीं कर सकते, आप पीछे भी नहीं बुराई कर सकते. आपने अपने काम से काम मतलब रखना है. तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे अपना कमल खिलाएं, बजाय कि दूसरे की जो कीचड़ है उसको देखना या उसके बारे में किसी भी टाइप का बात करना. वो एक इग्नोर करने वाला एरिया है. आप अपना आगे बढ़ते जाएं और मुड़ के ना देखें. तो उससे आप उसी से आपको तरक्की मिलेगी, उसी से आपको खुशी मिलेगी, और उसी से आप वेट नहीं कैरी करेंगे कोई भी ग्रज या बैगेज का, बहुत लाइट फील करेंगे. यही मेरा एडवाइस है और लर्निंग है. सुपर मैम, बहुत बहुत अच्छा लर्निंग है कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस, जस्ट डोंट लुक एट व्हाट अदर्स आर सेइंग, सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर वर्क एंड यू कैन इंक्रीज योर परफॉर्मेंस. बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, ये बहुत की लर्निंग थी हम सब के लिए. और जितनी भी ऑडियंस, हमें इतनी सारी किताबें हमारी आने वाली है, वो जो पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आपके इंटरव्यू से निकल कर आ रही है लोगों तक पहुंचेगी, उसके लिए बहुत धन्यवाद मैम. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी इन डिटेल, कि मतलब अगर आप डीएलएफ में कितने साल थे, वहाँ की मेन की लर्निंग आपने क्या, आपको डीएलएफ के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के, फिर नेक्स्ट, और अभी फाइनली आप एक्सपीरियंस के साथ क्या कर रहे हो, मतलब कौन से प्रोडक्ट पे आपने मेनली उनके लिए काम किया, और आपकी मेन लर्निंग्स क्या रही. जी, मैंने जब DLF को ज्वाइन किया था, तो आई हैड जॉइन्ड देम एज अ सेल्स ऑफिसर. आई वाज जस्ट 21-22 इयर्स ओल्ड, एंड बहुत जल्दी मैं 4-5 साल में ही इतने बड़े ग्रुप की सेल्स हेड बन गई थी. और काफी बोथ वेज देयर वाज लॉट ऑफ ट्रस्ट, लॉट ऑफ कमिटमेंट, एंड बहुत ही मजा आया, क्योंकि गुड़गांव को जिस टाइप की एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, सारे जो एरियाज थे वो बनाने में काफी बहुत अच्छा रहा. कुछ टाइम तक मैं उनकी सेल्स हेड रही. उसके बाद कंपनी हैड डिसाइडेड, मैकेंजी वगैरह को हायर किया गया था, और फिर डिसाइड किया गया था कि 4 अलग अलग वर्टिकल्स होंगे जिनपे सबका उतना ही डिटेल फोकस चाहिए. रिटेल उस वक्त एक सनराइज इंडस्ट्री थी, और मुझे रिटेल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटेल मैं वहां पे थी.
तो वो एक ग्रोथ थी। 16.5 years तक मैं DLF में ही रही। उसके बाद मैंने ईमार MGF ज्वाइन किया था उनके चीफ एग्जीक्यूटिव रिटेल के लिए। फिर मैं बाद में रेजिडेंशियल भी किया, कमर्शियल भी किया, सारा कुछ जो उनका था वो आता रहा। और जब मैंने ईमार ज्वाइन किया तो ईमार के उस टाइम पे 17 कंट्रीज में ऑपरेशंस थे। बुर्ज खलीफा बन रहा था उस टाइम पे, और लार्जेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड भी बन रहा था उनका। तो बहुत सारी लर्निंग्स वहां से आती रही, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस काफी सीखने को मिली वहां पे, और प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा था, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन जब आप रन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे मिस्टर KP सिंह जी, मिस्टर राजीव सिंह जी, बाद में PR जी भी, दे वर ऑल वंडरफुल लीडर्स, सब प्रोफेशनल हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं। इसी तरह से ईमार में भी मिस्टर मोहम्मद अलाबार वहां पे थे, और यहाँ पे भी पूरी जो फैमिली थी MGF की, वो भी सब बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड के और बहुत फोकस वाले लीडर्स थे। और ईमार में जब मैं थी तो ऑब्वियसली गुड़गांव में इनके प्रोजेक्ट्स थे, हैदराबाद में भी काफी कुछ था, पंजाब, चंडीगढ़ बहुत बड़ा फोकस एरिया था, लखनऊ, इंदौर, कई जगह पे थे इनके। पैन इंडिया इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो था। तो इंडिया भी स्ट्रांग हुआ मेरा, और इंटरनेशनल बिजनेस का भी नॉलेज काफी स्ट्रांग हुआ उस जर्नी में मेरा। उसके बाद फिर मुझे DLF ने इनवाइट वापस किया। तब तक DLF का पैन इंडिया ऑपरेशन शुरू हो गया था। तो DLF उस स्टेज पे 18 या 20 सिटीज में वही जो DLF ने गुड़गांव में किया था वो रेप्लिकेट कर रहे थे। तो बैंगलोर, चेन्नई, कोचिन, हैदराबाद, शिमला, कसौली, चंडीगढ़, मतलब इतना ह्यूज पोर्टफोलियो, लखनऊ, भुवनेश्वर, कैलकाटा, मतलब आप ये सोचिए मैं ऑफिस ही एक ट्रॉली के साथ जाती थी। मेरी कार में हर वक्त एक ट्रॉली होती थी कि पता नहीं कहाँ पे मुझे किस टाइम पे जाना पड़ जाए। कभी क्राइसिस के लिए, कभी वर्क के लिए, कभी, क्योंकि टीम्स थी सब जगह। तो जो गुड़गांव का मॉडल था, जो गुड़गांव 20 साल लग गए थे क्रिएट करने में, वो ही हर जगह क्रिएट करने की ड्रीम थी एक, कि 5 साल में या आधे टाइम में ही वो इतनी सारी सिटीज हो जाए, और बहुत खूबसूरती से वो किया भी। और उससे मेरा जो एक रिलेशनशिप्स, क्योंकि हर शहर में आप जा रहे हैं, वहाँ के चैनल्स, वहाँ के बैंकर्स, वहाँ के इन्वेस्टर्स, वहाँ के HNIs, और सभी चीज से आप इतना फेमिलियर हो जाते हैं। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत मेरा टाइम रहा। वो 8.5 साल मैंने ये लाइफ लीड की। उस टाइम पे माय सन वाज आल्सो ग्रोइंग अप, वो भी एडोलेसेंट था, उसको भी टाइम चाहिए होता था। तो काफी एक वो बहुत ही, मैं कहूंगी, हेक्टिक, बिजी और हर तरह से टेस्टिंग टाइम था। फिजिकली भी, इमोशनली भी, इंटेलेक्चुअली भी, नॉलेज वाइज भी, एक बहुत बहुत लाइफ का एक टेस्ट था मेरे लिए कि मैं कितना उसमें शाइन कर सकती हूँ। एक मौका भी था, वही चैलेंज होता है कि आपको एक जो डिफिकल्ट टाइम मिलता है उसमें आप कितना कर सकते हैं। तो 8.5 साल मैं वहां पे थी। फिर मैंने डमैक ज्वाइन किया। डमैक के तो दुबई में ही, इट्स द लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी इन UAE, एंड दुबई में उनके जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया 68 या 70 डेवलपमेंट्स थे उनके, और बहुत ही प्यारे डेवलपमेंट्स थे, थीम के अपार्टमेंट्स थे, पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ टाई अप थे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कवाली के रेजिडेंसेस थे। मतलब जिस तरह से दुबई में डेवलपमेंट हुआ है वहां, तो वैसा तो दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है। तो सीखने को भी बहुत मिला, और इतनी नेशनैलिटीज के कोलीग्स थे वहां पे, कोई, और सब इंडियन, काफी तो इंडियन लगते थे, लेकिन जब बात करते पता चलता है ये तो इजिप्शियन है, ये तो लेबनीज है, ये तो वो है, क्योंकि एशियन शक्ल से तो आप नहीं बता सकते। बिजनेस सूट में हम सब एक से ही लगते हैं। पर बहुत कुछ वहां पे अच्छा लगा मुझे, अच्छा टाइम बीता। और उसके बाद में you are handling at what position? में I was the country head for India International Business Development, and जो यहाँ के लोग वहाँ खरीदना चाहते थे या वैसा वैसा कुछ, अगर किसी को हेल्प चाहिए थी तो हम उनको गाइड करते थे कि किस तरह से उनको ये सारा कुछ करना है। और उस वक्त एक थॉट प्रोसेस भी था कि इंडिया में भी ऑपरेशंस जोर शोर से शुरू किए जाएं। वो फिर बाद में थोड़ा सा प्लानिंग चेंज हो गया था, क्योंकि कई चीजें हुई, ब्रेक्सिट भी हुआ, और चाइना की मार्केट भी चेंज हुई, काफी कुछ चेंज हुआ इंटरनेशनली। तो फिर वो इंडिया भी उसमें थोड़ा इम्पैक्ट हुआ।
उसके बाद मैंने पर लर्निंग बहुत जबरदस्त रही, जिस टाइप के सैंपल अपार्टमेंट, साइट विजिट्स, वाटर फ्रंट रेजिडेंसेस, मतलब बहुत ही प्यारा एक अपॉर्चुनिटी था। और मिस्टर सजवानी भी बहुत हैंड्स ऑन है। इनफैक्ट उनके बोथ हिज चिल्ड्रन आर आल्सो वेरी सीरियस अबाउट देयर वर्क. Okay. His son in fact came even to Chennai to meet our investors and our channels and everything. तो आर्किड पैलेस में वो खुद भी आए और बहुत हैंड्स ऑन. इस बिजनेस में आपको होना ही होता है, तो वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा. उसके बाद मेरे को एक्सपीरियन में अपॉर्चुनिटी मिली सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने की. ये एक 100% FDI है, सिंगापुर से AT कैपिटल फंड है और बहुत प्यारे डेवलपमेंट किए हुए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, लखनऊ में, अमृतसर में. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर रही हूँ जहाँ कंस्ट्रक्शन बिफोर टाइम चल रहा है और जो कि वेलकम करते हैं GST, रेरा, क्योंकि इंटरनेशनल चेन तो उनको आदत है ये सब चीजें और सारी चीजें फॉलो करने की, रूल्स एंड रेगुलेशन से अपना सारा चलाने का. तो हमें लॉकडाउन, पैंडेमिक, मॉनसून, कुछ नहीं, हमारा बिजनेस टचवुड स्टेडी चलता रहा. और यहाँ पे लोग प्लॉट्स भी बेच रहे हैं, डुप्लेस, पेंट हाउसेस, अपार्टमेंट्स. लास्ट ईयर मिस्टर मिलन सोमन ने हम लोगों को एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया था. इस ईयर नैट जियो ने भी हम लोग को कवर किया. तो बहुत सारा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं. तो वो एक नया एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा. एक जगह पे मैं स्केल, मतलब ज्योग्राफी इतनी स्प्रेड आउट और प्रोडक्ट कैटेगरीज इतनी स्प्रेड आउट, मतलब आप 15 लाख से लेके और आप 50 करोड़ तक के प्रॉपर्टीज बेच रही थी मैं DLF में. और यहाँ पे एक बहुत अलग चीज कि एक इस टाइप के सेटअप में भी एक सक्सेसफुल होना और अपने को अडेप्ट कर पाना, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है ये. अब 2.5 साल हो गए मुझे. दिस इज माय 3rd year here. So enjoying this also. जी. Okay. Ma'am, my question to you is, all these positions what you have handled were related with the leadership positions in the company. So what leadership philosophy you used to implement every time when you were working in different companies? What is your leadership philosophy throughout? देखिए, मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही चीजें आपको चाहिए होती हैं. एक तो होता है कि आप अपना कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखें. कुछ भी हो, आप जब निडर होके अपने जॉब की परवाह बिना किए जब आप ऑफिस में जाते हैं, तभी आप ये कर सकते हैं. तो चाहे कैसा भी सवाल आपसे पूछा जाए, अगर आप बिना ये सोचे कि इसका रिएक्शन क्या होगा, आप अगर बोल सके कि मैं ये सोचती हूँ कि ये सही है, बाकी डिसीजन जो बोर्ड ने लेना है, जो सीनियर्स ने लेना है, जो एक वो तो डेमोक्रेटिक सेटअप है ये पूरा. कंपनी अकेला तो कोई इंसान नहीं चलाता है. लेकिन अगर आप कम्युनिकेट अपना जो ट्रूथ है, आपके दिमाग में जो ट्रूथ है, जितना आपके पास ज्ञान है, उसके हिसाब से उस मोमेंट पे जो आपको सही लग रहा है, वो अगर आप कम्युनिकेट कर सके एक ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी के साथ, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक बहुत बड़ी चीज होती है. क्योंकि जहां से आप कह रहे हैं शिव जी की हट्टी होती है या आपको एक सीट पे बिठाया गया है. मैं बहुत I really believe in a lot in that हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, बाकी there are other powers which are guiding us from one place to the other. I believe in that philosophy. And the universe कह लो या God कह लो या आप जो भी word use करना चाहें, या एक spiritual forces बुला लें, आप कुछ भी बुला लें, या आप चाहे उसे मैथ्स ही बुला लें, सिंपल स्टार्स की एनर्जी कह लें या जो भी कह लें, हम इस यूनिवर्स का ही पार्ट है. तो अगर हमें किसी एरिया में गाइड किया जा रहा है, तो उस जॉब में हमें बिठाया गया है वहां पे कुछ चेंज लाने को, कुछ बेटरमेंट लाने को, कुछ इम्प्रूवमेंट लाने को, और वो हम नहीं कर सकेंगे अगर हम एक येस मैन पर्सन ही रह सकेंगे. तो कभी उससे अनप्लेजेंटनेस भी हो सकती है, कभी उससे प्लेजेंटनेस भी हो सकती है, कभी आपकी ग्रोथ भी कट सकती है, कभी आपको ग्रोथ मिल भी सकती है. लेकिन जो भी आउटकम रहे, लॉन्ग टर्म में ये फॉर्मूला बहुत सही बैठता है लीडरशिप के हिसाब से, और मैं यही सोचती हूँ. और दूसरी बात ये है कि एक आप कोई लीडर रेजिग्नेशन से नहीं बनता है. अमोल जी, आपने बोला कि ऐसी रोल्स में मैं रही हूँ, ऐसे रही हूँ.
कोई लीडर डेजिग्नेशन से नहीं बनता है, आप सिर्फ एक मैनेजर बनते हैं डेजिग्नेशन से, राइट। आप सिर्फ एक पावर सेंटर बनते हैं एक डेजिग्नेशन से। आप लीडर बनते हैं अपने कर्मों से, अपने बिहेवियर से। अगर आपको लग रहा है आपका जूनियर एक ऐसे एनवायरनमेंट से आया है जहाँ थोड़ी सी ग्रीडीनेस है, या जहाँ से थोड़ी सी लेजीनेस है, या वो आपको देख के ही सुधर जाएंगे अगर आप ठीक है। लेकिन अगर आप ठीक नहीं है तो आप क्या ही लीडर है। एक डेजिग्नेशन एक विजिटिंग कार्ड है, आप उससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं है। एंड शेम ऑन यू कि अगर आपको देख के कोई बदली ना हो सके, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। सुपर्ब। मुझे लगता है ये इंटरव्यू का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत पॉइंट आपने कहा, गोल्डन नगेट मैम हैज शेयर्ड। ध्यान दीजिए कि आपका डेजिग्नेशन सिर्फ एक कार्ड पे लिखा हुआ एक लाइन है। आप खुद एक अच्छे लीडर हैं तो ही आप ग्रो कर सकते हैं, वरना आप हर पोजीशन पे एक मैनेजर हैं। और अगर आप लोगों को चेंज नहीं कर पाए, या वो जो आपकी टीम में आए हैं वो आपको देखकर अगर इंस्पायर ना हो पाए, तो फिर क्या ही आप उस पोजीशन पे। सुपर्ब मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस लर्निंग। The next thing what I want to ask you is one inspirational story that had happened in the last 30. वैसे तो बहुत inspirational stories आपके साथ, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को आपने हैंडल किया, या कोई ऐसी स्टोरी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला। ऐसा कोई प्रैक्टिकल जरूर आप अगर हमें बता सके। 31 सीखने को मिला। अच्छा, कुछ तो एक ऐसा सिचुएशन, कभी कोई क्लाइंट के साथ डील कर रहे होंगे आप, या कोई बहुत बड़ा जेवी का प्रोजेक्ट, या कुछ बड़ी डील एफडीआई की, और उस दौरान जो आपको एक एक्सपीरियंस आया, वो अगर आप हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपका। जैसे आपने बोला 31 इयर्स एक बहुत लंबा टाइम होता है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। कभी किसी सीईओ के साथ आप बैठे हो और कुछ एक बहुत बड़ा डील आपके सामने क्रैक हुआ हो, और वो स्टोरी आपको एकदम छू गई हो दिल को, कि ये पूरे 31 इयर्स की सबसे टच्ड या इमोशनल स्टोरी आपके लिए भी हो सकती है रियल एस्टेट। जी, रिमेंबर एंड शेयर दैट। जी, नहीं, देखिए, एक जैसे मिस्टर नोएल टाटा जी हैं, वो टाटा वेस्ट साइड वगैरह हेड करते थे, और उस वक्त मैं डीएलएफ में रिटेल लीजिंग हेड करती थी। जिस ह्यूमिलिटी से वो आते थे मिलने, और मेरे ऑफिस में आ गए और बैठ गए, कॉन्ट्रैक्ट की एक लाइन पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब इट यूज्ड टू रियली टच मी कि इतनी बढ़िया टीम है इनके पास, बैटरी ऑफ लॉयर्स है, पूरे बिजनेस डेवलपमेंट के ट्रस्टेड लोग हैं उनके साथ, बहुत सालों से जो उनके साथ है। लेकिन जिस तरह से वो बैठते थे, और उसी डिस्कशन में, मतलब बाद में आप रियलाइज करते हो जब वो चले जाते हैं, एक आदमी की ग्रेटनेस होती है। अगर वो 10 मिनट भी बैठे हैं तो मेरा तो उनसे क्या ही फायदा होगा सीखने का। जिस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ लेते थे और जितना ज्ञान वो बटोर के ले जाते थे, तो उसमें मैंने एक रियलाइज किया कि देखो, क्योंकि मैं हैंड्स ऑन थी, मुझे पता था कि डीएलएफ के 12 मॉल्स में ऑल ओवर इंडिया क्या चल रहा है, ब्रांड्स के क्या हाल चाल है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इंटरनेशनल कौन इंटरेस्ट दिखा रहा है, कौन कंपीटिंग ब्रांड्स हैं, कौन डेवलपर्स इस एरिया में फोकस कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए ये सब ज्ञान, जैसे आप बोल रहे हैं किताब को लेके बैठ के पढ़ना या रिसर्च एडवाइजरी रिपोर्ट पढ़ना, वो तो 10 मिनट मेरे साथ बैठ के वो इतना कुछ, मैं सोचती कि इतना कुछ क्यों जानना चाह रही है, क्यों इतना पूछ रहे, उतना ज्ञान लेके चले जाते थे वो वहां से, कि बाद में जब वो आते थे तो मैं कहती थी, मैंने कहा, आई यूज्ड टू टेल हिम, आई सेड, सर, आई थिंक मेरे से मिलने में ना आपका ज्यादा फायदा होता है, मेरा कम। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो अच्छा ठीक है, दिस आई हैव गॉन थ्रू दिस, दे विल साइन इट, दे विल वर्क इट आउट। तो हिज पर्पस ऑफ कमिंग टू इट कि शी इज सो हैंड्स ऑन, एंड इसने इतना ग्रास रूट तक ग्रास्प है इसका कि आई नीड टू सिट विद हर, एंड आई मेड श्योर दैट यू नो, मैं किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह पे बैठती हूँ, मैं अब जहां पे भी होती हूँ, जैसे मेरे को भी लगता है कि अच्छा ठीक है, एक मेरा मैनेजमेंट ट्रेनी भी होगा जिसका काम सिर्फ जाके ब्रोकर्स को ट्रेन करके आना है, जो हमारे ब्रोकर हैं भी नहीं, उनको हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग देके आना है। उससे भी मैं पूछती हूँ, तो रिएक्शन क्या था, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने तुमसे, हमारे बारे में सबसे बुरी बात क्या बोली, हमारे बारे में सबसे अच्छी बात क्या बोली, and all that helps me a lot in the decisions that I take then ultimately, क्योंकि हर डिसीजन करोड़ का होता है रियल एस्टेट में, कोई भी उससे अगर आप सही ना ले पाए तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो ये एक मेरे को बहुत अच्छा उनका लगा श्री नोएल टाटा जी का, कि उन्होंने तो स्टोर खोलने थे अपने वेस्ट साइड, टाटा वेस्ट साइड के स्टोर्स खोलने थे, उसमें इतना पूछ लेते थे कि आसपास रहने वाले क्या जॉब करते हैं, क्या उनकी इनकम है, क्या उनकी कमाई है, और ये मॉल में और कौन कौन होंगे, वो ब्रांड क्यों आ रहे हैं, वो क्या बेचने का सोच रहे हैं। तो एक वेरी नाइस। सुपर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल स्टोरी। और एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर आया स्टोरी से कि पावरफुल क्वेश्चंस पूछने से ही सही आंसर मिलता है। सो we were telling this again and again in so much of our YouTube videos we have shared this कि powerful questions का real estate में बहुत impact होता है। अगर आप सही क्वेश्चन पूछेंगे तो सही आंसर जरूर मिलेगा, जैसे इतना अच्छा आंसर मैम से मिला। मैम, ऐसा कहा जाता है कि all leaders are good readers. So during your journey आपको कोई बुक बहुत पसंद आई हो, या one or two favorable books of yours जो आपको लगता है कि other than the formal education what we have taken, ये एक दो बुक से आपने बहुत सीखा, तो ऐसी कोई एक दो बुक आप शेयर करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, हर स्टेज पे ना एक अलग ऐसा नहीं है कि कोई एक किताब है और वो आप उस पे है। मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती थी, मेरे DLF और EMAR MGF के पोर्टफोलियोज में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होती थी। तो एयरपोर्ट पे है, प्लेन में है, और डार्स है, तो हर बार मैं 3-4 किताबें खरीद ही लेती थी एयरपोर्ट से। वो मेरे हैंड बैगेज में हमेशा होती थी, अलग अलग चीजों की, मैनेजमेंट की, स्पिरिचुअलिटी पे, कोई सिर्फ नए ऑथर्स की ही हो गई, कोई ह्यूमर पे ही हो गया, अलग अलग चीजों पे, कभी पेरेंटिंग पे हो गया, इंटरेस्ट के लिए कि भाई सही कर रहे हैं हम, सही किया है या कहीं पे कमी रह गई है तो सुधर जाए। तो अलग अलग टॉपिक्स पे ले लेती थी मैं और पढ़ती रहती थी। देखिए, मेरी सबसे ऑल टाइम फेवरेट बुक तो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, श्री परमहंस योगानंद जी की बुक है। और वो मैंने जब बचपन में पढ़ी तो मुझे कुछ और समझ आया, फिर बड़े होके पढ़ी तो कुछ और समझ में आया, अब मैं पढ़ती हूँ रैंडम उसे कभी भी तो कुछ और समझ में आता है। तो हर सेंटेंस और हर लाइन का मीनिंग भी आपके लिए चेंज होता जाता है as you gather more and more experiences in life. तो वो एक मेरी बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब है जिसका टाइटल मुझे बहुत पसंद है, किताब तो मैंने पढ़ी थी Even Eagles Need a Push. एंड ये किताब मैंने खरीदी थी, फिर मेरे ऑफिस में ही रह गई थी, वो घर कभी पहुंची ही नहीं थी, वो पढ़ी रहती थी, Even Eagles Need a Push। और मैं सच में सोचती थी, मैंने कहा यस, एक टाइम के बाद हम लोगों को अपना रिफ्रेश बटन दबाने की जरूरत है, क्योंकि आप वो इतना रूटीन में बॉग डाउन हो जाते हैं कि जो आपके पास आता जाता है आप उसको सॉर्ट आउट, ये निकालो, ये हटाओ, ये काम खत्म करो, ये काम खत्म करो, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो। तो आप एक वो बहुत रिएक्टिव बन जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। अगर मैं एक रिएक्टिव पर्सन रहूंगी तो मैं सीनियर ED बनी रहूंगी, मैं MD नहीं बनने वाली। लेकिन अगर मैंने कि ठीक है बहुत अचीव कर लिया, अरे आप भी बहुत तारीफ कर रहे हैं, जिससे बात करते हैं वही कहते हैं लेडी बन के आप यहाँ पहुंच गए, तो बस बड़े खुश होके यही बैठे रहेंगे, अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अगर मुझे सोचना है कि नहीं, क्यों मैं MD नहीं बन सकती, क्या मेरे में कमी है, कैसे मुझे वो सुधारनी है, क्या चीज ठीक करना है, क्या और सीखा जा सकता है, क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है कि नहीं। तो ये कहाँ का रूल है कि अगर आप कंपनी ओन करते हैं तभी आप मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं बीइंग अ लेडी, ये तो कोई रूल नहीं है। तो चलो ये रूल चेंज किया जाए। तो अगर ये सोचना है तो इवन ईगल्स नीड अ पुश। तो यू हैव टू पुश योरसेल्फ। किसी ने आके आपको पुश नहीं करना है, आपके सामने सबने आपकी तारीफ करनी है, आपके पीछे आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करनी है, लेकिन जिनको आपकी ग्रोथ हर्ट कर रही है उन्होंने थोड़ी बहुत आपकी बुराई भी करनी है। अगर तो वो बुराई सच है तो सुधार लें अपने को, अगर तो वो बुराई झूठ मूठ है तो एक कान से सुने दूसरे से निकाल लें, थोड़ा सा अपने को स्ट्रांग बना लें। लेकिन आपने खुद में ही झांक के देखना है कि भैया आगे और अब यहाँ से बेटर कैसे होना है। सुपर मैम, मैं कहना चाहूंगा आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आई एम गोइंग थ्रू एन एंटायर कोर्स, यूनिवर्सिटी 5 साल का कोर्स है और 1 घंटे में क्रैश कोर्स आप समझा रहे हैं। मतलब इट इज सो प्रैक्टिकल, बिकॉज हम भी 15 साल से टचवुड मैं रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हूँ, 3 कंपनीज हमारी चल रही है। जितनी भी चीजें आप बता रहे हैं मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि कैसे प्रैक्टिकली इन सब चीजों का हमको भी फायदा मिला। और जितनी अच्छी चीजें कही आपने कि इवन ईगल्स नीड अ पुश की, अगर मैं इस पोजीशन पे मान लूं कि यही सबसे अच्छा, यही सर्वश्रेष्ठ है,
तो मैं और ज्यादा इंप्रूव करना, लर्निंग बंद कर दूंगा, और मैं लर्निंग बंद कर दूंगा तो आगे की और ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सो चीजों को सुनिए और दिमाग में रखिए, लेकिन इतना मत रखिए कि आप उसकी वजह से अपनी ग्रोथ या अपना सीखना ही बंद कर दें। तो बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल कर आए। मैम आप थोड़ा कोर सेल्स की तरफ जाएंगे। रियल एस्टेट में सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि बिना सेल्स के रियल एस्टेट की गाड़ी ही नहीं चल सकती। ओवरऑल तो सातों डिपार्टमेंट का रहना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये पूरे 31 ईयर्स के एक्सपीरियंस में द सेल्स पोर्शन वाज हैंडल्ड बाय ओनली द एम्प्लॉइज ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन, और most of the time by the channel partner of the organization, or there were hybrid models of employees and channel partners in sell? कैसे मॉडल आपने एक्सपीरियंस किए पूरे करने में? अच्छा देखिए, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, सबसे पहला पोर्टफोलियो मुझे दिया गया था चैनल पार्टनर्स। इतनी मैच्योरिटी नहीं थी मेरे पास 21-22 साल पे कि मैं उतने बड़े बड़े 4 जनरेशन रियल एस्टेट ब्रोकिंग वाली फैमिलीज के इतने धुरंधर लोगों को हैंडल कर सकूं, लेकिन बहुत जल्दी सीख लिया। सो देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया चैनल पार्टनर्स के बारे में, आके लोग मुझे बोलते थे, चैनल के थ्रू ही बुकिंग करते थे, लेकिन इतनी बुरी बुरी बात बोलते थे, ओ दे आर द स्कम ऑफ द सोसाइटी, एनीवन हु डजंट स्टडी और डजंट डू वेल और हैज नो बिजनेस, वो ब्रोकर बन जाते हैं, ये है वो है। मैंने बहुत सोचा, आई रियलाइज्ड ऐसी बात नहीं है। जो चैनल पार्टनर्स मेरे पास आ रहे हैं वो इतने कमिटेड हैं। एजुकेशन तो आप साइड में छोड़ दीजिए, और भी बहुत क्वालिटीज होती है लाइफ में। ट्रस्ट कितना बिल्ड किया हुआ है उन्होंने बायर का। सुबह 6 बजे, रात के 12 बजे वो जाने को तैयार है कस्टमर के घर, फॉर्म उठाने के लिए, सब कुछ समझाने के लिए, सारा कुछ उनका करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, नोटरी के जाना है वहां चले जाएंगे। यही नहीं, अगर आपने एज अ बायर बोल दिया कि भाई मैंने ये बेचना है, फिर वो खरीदना है, कोई बात नहीं सर, मैं ये पहले आपका बिकवा देता हूँ, वो भी कर देंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज वो नहीं कर पाएंगे। तो एक स्ट्रैटेजी लेवल पे, कंट्रोल लेवल पे, एक स्मूथनेस ऑफ बिजनेस, प्रोसेसेस ठीक हो, प्रोफेशनलिज्म हो, रूल्स हो, कहीं कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए, कंस्ट्रक्शन स्मूथ चले, वो ट्रांसपेरेंसी रहे, एक जो पेमेंट्स वो कर रहे हैं, जो एरिया वो खरीद रहे हैं, जो डिजाइन वो खरीद रहे हैं, वो सब चीजें तो आपकी टीम ने ही कंट्रोल करनी है, राइट। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि चैनल पार्टनर्स के बिना आप वो करें। और तब में और अब में, माय गॉड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चैनल पार्टनर्स हैं, वो पूरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट्स का हैंडल करते हैं। लॉयर्स चैनल पार्टनर्स हैं, इतने क्वालिफाइड लोग हैं जो MBA हैं, बेस्ट MNCs में काम किए हैं, वो आज आत्मनिर्भर बनने के लिए और आज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो कर रहे हैं। मतलब इतने सारे ICICI, HDFC वगैरह टॉप बैंक्स के एम्प्लॉइज हैं जो आज चैनल पार्टनर्स हैं, और इतनी अच्छी तरह एंड टू एंड गाइडेंस देते हैं, रेंटिंग भी कराते हैं, फैसिलिटीज मैनेजमेंट भी कराते हैं। तो मेरे हिसाब से चैनल एंड योर ओन टीम ऑफ द डेवलपर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों ने साथ साथ चलना है। आप ये नहीं कह सकते मैं हार्ले डेविडसन चला रहा हूँ एक पहिए पे, गए काम से, सर भी फूटा पैर भी टूटा। दोनों आपने अगर वो जॉय राइड एंजॉय करनी है तो दोनों पहिए आपके चलने बहुत जरूरी है। वेल ऑयल्ड सर्विसिंग बिल्कुल टिप टॉप हो, रिलेशनशिप आपस में बिल्कुल टिप टॉप हो, और वो आपकी चलनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा चैनल पार्टनर्स को रिस्पेक्ट करती हूँ, उन पे फेथ रखती हूँ। काफी हद तक मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरी ग्रोथ चैनल्स की वजह से थी, और जबकि मैंने किसी में फेवरेटिज्म फेवर दोनों नहीं किया। जैसे ये आजकल हम सुनते रहते हैं ना हर जगह, ये विदाउट फियर ऑफ फेवर, विदाउट फियर और फेवर जब आप चलते हैं ना, ये आप प्रॉपर्टी आप इस चैनल पार्टनर को क्यों अलॉट कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने पहले फोन कॉल किया था, क्योंकि उनका चेक पहले आ गया था। वो सिस्टमैटिकली आप सब मेंटेन करेंगे ना, तो कहीं पे गदर नहीं होगा और वो रिलेशनशिप्स आपकी नहीं जाएंगी। मतलब जो 31 इयर्स पहले मेरे साथ जो चैनल पार्टनर्स थे, आज भी सबसे पहला हैप्पी दिवाली मैसेज और सबसे लास्ट हैप्पी दिवाली मैसेज, बीच में हम कई साल चाहे ना भी मिले, पर वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हर वक्त रहता है कि ये सही जगह है, हमारे साथ सही ही होगा, गलत नहीं होगा इनके पास गए तो वो एक डेवलपर को वो इमेज बनानी बहुत जरूरी होती है कि आप फेवरेटिज्म नहीं रखें, आप ट्रांसपेरेंसी रखें और इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। सब आपके साथ काम करेंगे एंड स्काई इज द लिमिट। राइट।
Superb, ma'am. Excellent answer you have given. This is one of the best answer, and I want to tell every upcoming real estate entrepreneur that these are the positive points you have to pick from this interview, and you have to implement in your company. Then and only then you can become a good player in your own industry, in your city or in your state. The next question, ma'am, which is related with the same thing, channel partner model तो बहुत important है real estate के लिए, आपको सबको समझ में आ ही गया है कि अपनी टीम को हमेशा इंस्पायर करने के लिए या जोड़े रखने के लिए रियल एस्टेट में क्या ऐसी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस आप बताना चाहेंगे? पावरफुल टीम बनाने के लिए क्या प्रैक्टिसेस व्यक्ति ने करनी चाहिए? देखिए, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो किसी को मोटिवेट करने के लिए चीजें होती हैं, हर कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट जो होता है, वो एक डजन लोग जो बैठे होते हैं, वो पूरी किताबें पढ़ के आए हैं, पूरा एक्सपीरियंस करके आए कि उन्हें क्या क्या चीजें सही करनी है लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए। ठीक है, तो वो अपना काम करते रहते हैं। आपका फोकस एज अ बिजनेस हेड, एज अ सेल्स हेड और एज अ कस्टमर रिलेशनशिप हेड, आपका फोकस है उन रिलेशनशिप्स को कैसे स्ट्रॉन्गर किया जाए, है ना। अभी कुछ भी हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कल गए रजौरी, ही मेट आवर सोल्जर्स and he told them you are my family। ये वो लोग हैं जो रोज, मतलब आप सोचिए, एक 10 दिन में 10 deaths have happened to protect the motherland, है ना। रियल एस्टेट भी तो आप वही है, आप मदरलैंड ही तो ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में। तो जो खरीद रहा है उसके लिए भी वो उतना ही बड़ा इमोशनल डिसीजन है, जो बेच रहा है उसने, डेवलपर ने 10 साल पहले जमीन खरीदी, अप्रूवल्स लाए, फिर बनाया, अपना पैसा डाला, अब उसे रिटर्न मिलने वाला है, उनके लिए भी वो उतना ही इमोशनल डिसीजन है। क्या ये जो आपकी टीम आ रही है आपके पास, वो ये समझ रही है? क्या आप उनको समझा पाए हैं कि जो उनके अक्रॉस द टेबल बैठे हुए हैं, उनकी जिंदगी का वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है? कितना पेशेंटली आपको हैंडल करना पड़ेगा उनको और उनकी पूरे फैमिली मेंबर्स को। तो एक आप ये तभी कर पाएंगे अगर आप उनके साथ एक वही अपनी फैमिली समझ के आप जा पाए। अगर आप अपने टीम में किसी को डांट रहे हैं किसी वजह से, तो उन्हें पता होना चाहिए, ये नहीं है कि किसी की शक्ल पसंद नहीं है या कोई फेवरेट है या कोई है इसलिए आप see I can be an empowered woman, I can be a woman leader, but are the men ready to accept your advice and accept a woman leader? So very sensibly, very tactfully you have to explain to them that what is it that they are doing wrong, and the minute they will realize कि अरे वाह, ये मैम ये टिप दे गई हमें, इससे हमारे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, हमारे इंसेंटिव इंप्रूव हो गए, हमारे ग्रोथ, उनको आपको अपने साथ इन्वॉल्व करना है। अपनी जो आपकी ग्राउंड लेवल सेल्स टीम है उनको आपको इन्वॉल्व करना है अपने साथ कि दे आर नॉट वर्किंग फॉर यू, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी, दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ। If they want a better tomorrow, if they want to take home more for themselves and for their loved ones, और कोई खुश हो या नहीं हो आपकी तरक्की में, एक माँ, एक आपका स्पाउस, वो तो बैठे ही हुए, कितना एक्साइटेड होते हैं जब आपकी तरक्की होती है। आपके साथ शायद 2 मिनट में भाग जाए, लेकिन वो फोन पे जो घंटों इसको बताएं उसको बताएं, ये प्रमोशन हो गया, ये इंक्रीमेंट हो गया, ये इंसेंटिव कमा लिया। It's not about money, it's about the pride that your family feels when you are successful. Right. They don't want anything from you, but your success gives them 4 times more joy than it even gives you. So the minute you start thinking you are working for yourself, तब आपको नहीं लगेगा कि 6 बजे मैं भाग जाऊं यहाँ से। Right. क्योंकि अगर वो सेल क्लोज हो गई तो वो आपने अपने लिए क्लोज की है। तो वो एक आपको एक ओनरशिप और एक कॉन्फिडेंस और एक सपोर्ट, और जहां आपको कमियां दिख रही हैं वो आप उनकी कमियां ठीक कर सके। मैं 3 महीने मुझे पैर में सियाटिका पेन था, मैं खड़े नहीं हो पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, कुछ नहीं हो पा रही थी, बट मैं पेन किलर्स खा के जिस दिन R&R अवार्ड देने थे, प्राइजेस देने थे सबको फॉर गुड परफॉर्मेंस, मैं किसी तरह पहुंच गई द्वारका एक्सप्रेस में।
2 क्वेश्चन रख के ये वो कार वार करके। आई सेड नहीं, आज मेरे को यस एचआर अपना काम कर रहा है एंड वी हैव फैंटास्टिक पीपल हु आर डूइंग टू गुड एंड टू मच फॉर देम, बट आई सेड मेरे को साथ खड़ा होना है। दे हैव टू नो दैट इफ दे दोज हु हैव बीन स्टार्स, their leader is watching and standing with them and appreciates them and loves them. पेन आप सिर्फ जब आपको प्यार होता है किसी से तभी आप सह सकते हो, और किसी के लिए दर्द नहीं सह सकते हो। बहुत बहुत बड़ी बात कही मैम आपने। तो है ना, तो I was there and they, मैं बता नहीं सकती, they were so happy कि पूछो मत, you know। तो एक ही मतलब हाँ, जिस दिन आपने क्वार्टर परफॉर्मेंस इतनी फैंटास्टिक की है और हर एक की परफॉर्मेंस सेम नहीं है, तो जिसकी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग के लिए तो आपको फिर रिस्पेक्ट देना है, सैल्यूट करना है। फिर सीनियर जूनियर की बात नहीं है, फिर आप जूम पे नहीं कर सकते। एकदम सही बात है ना मैम। तो ये एक मैं फील करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके आंसर सुन के मैं एक एक इमोशंस को समझ पा रहा हूँ। आपके चेहरा पे ना जब आपको एग्जांपल बताते हो तो वो इमोशन देखने मिलता है कि उस समय जब आपको पेन था, फिर आप स्टेज पे गए, आपने गाड़ी की कुशन लगाया, फिर जाके अवार्ड किया, तो वो इमोशन आपके चेहरे पे दिख रहा है। और यही प्रैक्टिकल रियलिटी है। जिसने वो प्रैक्टिकल काम किया, जब व्यक्ति को ये समझता हो कि साइट विजिट क्या है, क्लोजिंग क्या है, कस्टमर के जेब से चेक निकालने की कला क्या है, रियल स्टेट में जिस व्यक्ति को ये सब टर्मिनोलॉजीज खुद करने की आदत हो, वही वो इमोशन को डिस्प्ले कर सकता है, जो आपके इंटरव्यू से हमें देखने मिल रहा है। मैम थोड़ा सा एक और लेवल आगे जाएंगे कि आपका नेक्स्ट विजन या गोल क्या है? मेरा विजन, देखिए बहुत सारे विजन है। मैं बहुत ज्यादा, मेरा जो दिमाग है वो बहुत दौड़ता है। कंट्रोल करती हूँ, फिर प्लान बनाती हूँ, फिर वो करती हूँ। आई थिंक अ लॉट एंड आई टॉक अ लॉट ऑल्सो। वो तो आपने देख ही लिया। पर अलग अलग 4 बॉक्स होते हैं हमारी लाइफ के, है ना। तो प्रोफेशनली तो देखिए अभी मैं 52 की हूँ। 52 से 62 10 साल मैं चाहती हूँ कि जितना इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूं प्रोफेशनली अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो बाकी लोग हैं मिडिल मैनेजमेंट में, जूनियर मैनेजमेंट में, उनको उनकी ड्रीम्स अचीव कराने में जितना हेल्प कर सकूं, खुद लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठ सकूं और उसे अच्छी तरह चला सकूं, जो कि लोग कहें कि हाँ जी ये जिस तरह से इन्होंने ये रन किया, एक एग्जाम्पल है कि इस तरह से एक चलाना चाहिए। तो वो तो एक प्रोफेशनल गोल हो गया। As far as financial goals are concerned, touch wood, God has been kind. ऐसी कोई मेरी responsibilities या liabilities इस stage पे नहीं है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कमाऊं ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनकी मैं हेल्प कर सकूं, बिना ये सोचे कि अपनी ओल्ड एज में क्या करना है। क्योंकि हम एक प्राइवेट जॉब में है, जिस टाइप का कंफर्ट मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज, सबको पेंशन आ रही है, मेडिकल इज फुली पेड फॉर, एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी की लाइफ लीड कर सकते हैं, वो उस टाइप की, जब 21 साल पे किसी से 50 पैसे नहीं लिए तो फिर बुढ़ापे में ना लेने पड़े, तो इतना अपना कर सके कि अपने लिए भी है और दूसरों को भी खूब बांट सके, और एक अच्छा रिस्पेक्टफुल फाइनेंशियल लाइफ। क्योंकि जहां भी पैसे का लेन देन आता है वहां प्यार कम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत बड़ी बात कही आपने। प्रैक्टिकल जिंदगी में ये अपने आप में एक किताब है कि जहां पैसे की बात आती है वहां प्यार थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि अगला यही सोचेगा ना कि अगर आपके, चाहे आप अपने स्पाउस से अगर पैसा लेंगे तो he will think that you are with him because of what he is giving to you, not because of respect or love. And इसी तरह से माँ बाप से आप लेंगे तो किसी ना किसी स्टेज पे उन्हें भी लगेगा कि भाई ये देखो हमारा कितना ध्यान रख रहे हैं क्योंकि हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं। और फ्रेंड्स में भी इसी तरह से होता है कि ये है। तो मुझे लगता है कि रिश्ता फीका पड़ने लगता है जहाँ पे ये होता है। हालांकि एक बहुत मैं ये एडमायर करती हूँ ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि हाउसवाइफ्स बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। हमने अपनी ग्रैंड मदर्स और मदर्स को देखा है क्या सेल्फलेसली उन्होंने अपनी फैमिली को जिस तरह से रन किया, और अपना हमेशा कितने ही पढ़े लिखे और क्वालिफाइड हो,
लेकिन बैक सीट ले लेनी है। मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, हर जगह मम्मी को नहीं ऐसी मिल सकती थी कि वो टीचिंग बीएड किए हुए थे वो, लेकिन नहीं कर सकते थे। फिर 2 गर्ल्स को किस पे छोड़ के जाना है आपको, उनकी सेफ्टी की भी आपको फिक्र है। तो ये सब चीजें होती हैं, आपकी कई चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप अपना करियर का बैक सीट लेते हैं, और वो अंडरस्टैंडेबल होता है। लेकिन जहां ये प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां पे मुझे लगता है हमारा जीडीपी अगर 50% पॉपुलेशन हमारी कमाने लगे, इक्वल कमाने लगे, तो क्या हमारा जीडीपी होगा, क्या हमारे होम्स होंगे, क्या हमारा वो होगा, और क्या विमेन का रिस्पेक्ट होगा, है ना। और एट द सेम टाइम अगर ह्यूमिलिटी भी अपने साथ रखें, ये नहीं कि भाई हम कमा रहे हैं तो हम घमंड दिखाते फिर रहे हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है। इक्वालिटी होनी चाहिए, वन अपमैनशिप के लिए ना करें। ये एक मैं फील करती हूँ कि ये एक चीज अपनी फाइनेंशियल मेंटेन कर सके, हर स्टेज पे अपना दिल और दिमाग दोनों को इस्तेमाल करने की शक्ति मेरी रहे। ये एक प्रोफेशनल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, एक सोशल। जिन जिन लोगों ने मेरे को किसी भी स्टेज पे सपोर्ट किया है, इमोशनली सपोर्ट किया है, या किसी भी तरह से मेरे को नोइंगली अननोइंगली भी कभी कोई गाइड कर जाता है आपको, है ना, किया है, उनको मैं ना भूलूं। तो इस बार मैं दिवाली पे उन्हीं लोगों से, पुराने रिश्तों से ही मिलने गई। मैंने कहा नहीं, कोई नो कार्ड पार्टी, नो शोर शराबा, नो डांस गाना। वैसे भी मेरे पैर में तो तकलीफ थी ही, पर आई सेड उन लोगों के पास जरूर जाना है जो एक अपनी आत्मा से आपसे प्यार करते हैं, बिना आपसे कुछ एक्सपेक्ट किए, एक अनकंडीशनली जो आपको लव करते हैं, आपका वर्स्ट भी देख लेंगे, बेस्ट भी देख लेंगे, फिर भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, उनसे मिलना है। तो सोशली वो एक मेरा गोल है। और फिजिकली मैं यही चाहती हूँ कि हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि जान है जहान है। ये 2 साल में बहुत बड़ा लेसन सीखा है, बहुत सारे जान पहचान वाले फ्रेंड्स चले गए, जो एक हमारे जो एक सर्कल था, वो एक सर्कल थोड़ा छोटा हो गया है, हर जगह पे लॉसेस हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि अपनी हेल्थ पे, मेरी भी हेल्थ ठीक रहे, आसपास वाले सबकी हेल्थ भी ठीक रहे, ये एक प्रेयर भी है, और एक वो जिसे कहते हैं ना, संकल्प भी है कि कोशिश करनी है। अभी तक कोशिश नहीं की थी, अपने आप ही हेल्थ ऑटो मोड पे ठीक चल रही थी, अब जेन्युइनली कोशिश करनी है कि हेल्थ ठीक रहे। जी सुपर। तो ये 4 बक्से हैं, 4 गोल हैं, और देखिए कहाँ तक पहुंचते हैं। नहीं, जरूर पहुंचेंगे, और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको हर वो शक्ति दे जो आपको इस गोल तक ले जाए। आखिरी के 2-4 सवाल आपसे बचे, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी एक बहुत बड़ा सोशल वर्क आप कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक मिशन लिया ना, अगले 10 साल 2030 तक हम भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं, उन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो टॉप लीडर्स ने प्रैक्टिस की अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। और इससे होगा क्या, ये जो मिशन हमने क्यों सेट किया है, अगर एक व्यक्ति रियल एस्टेट में 30, 40, 50 लोगों को भी जॉब दे सके, तो हमारे भारत में 30 लाख से 40 लाख, मिनिमम 50 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे 10 साल के अंदर। और रियल एस्टेट सेक्टर में वो पावर, वो पोटेंशियल है। हमें ऐसा लगता है कि हम आराम से ऐसे लोगों को भी, जिन्होंने ग्रेजुएशन तक कंप्लीट ना किया हो, पर थोड़ी सी बोलने की कला हो, एबिलिटी हो लोगों से इंटरेक्ट करने की, वो एक अच्छे चैनल पार्टनर्स बनकर, एम्प्लॉयज बनकर रियल एस्टेट में बहुत सारा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए कि एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और उसे किसी सोशल बहुत बड़ी कंपनी ने लीड जनरेशन में मदद की, चाहे वो कोई भी एक्सपायर्ड, इतनी सारी कंपनीज इंडिया में काम कर रही है, सो उसका 70-80% अगर मटेरियल जो भी उनका इन्वेंटरी है उन डिजिटल कंपनी से बिक जाता है, तो बहुत सारे लोगों की कमाने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके जैसे प्रैक्टिकल लोगों के एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंच सके ट्रेनिंग और कोचिंग के रूप में, सो वो एम्पावर होंगे, ये सेक्टर ऑर्गेनाइज बनेगा, और एक छोटा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर भी 40, 50, 100 जॉब क्रिएट कर सकेगा। इसी मिशन के साथ हमने इस बुक को शुरू किया, इसी मिशन के साथ हमने कोर रियल एस्टेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग शुरू की। सो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान आपने दिया। बस कुछ 2-3 सवाल ये है कि आने वाले समय में रियल एस्टेट में क्या अपॉर्चुनिटी और क्या चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं? डॉक्टर अमोल जी, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है आगे, क्योंकि जैसे जैसे तरक्की हो रही है, जैसे जैसे पीपल आर बिकमिंग फाइनेंशियली बेटर, बिजली, पानी, रूरल अर्बन डिवाइड सब हट गया है, सारा कुछ हो गया है, तो रियल एस्टेट के लिए तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है इस टाइम पे, जो कि आप जैसे लोगों ने इतनी रिसर्च की है, स्टडी की है, पीएचडी की है, ये सब चीजें, डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि किस टाइप का प्रोजेक्ट कहाँ पे डाला जाए, किस साइज का, किस प्राइस का, ताकि वो
आते ही बिके। तो वो एक अपॉर्चुनिटी तो बहुत जरूरी है और बहुत जबरदस्त है भी। जो चैलेंजेस है वो ये चैलेंजेस है कि थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री में ना भेड़ चाल वाली मेंटालिटी हो जाती है। मॉल बनाना शुरू किया तो सबने मॉल बनाना शुरू कर दिया, तो 700 मॉल अनाउंस हो गए, उनमें से 300 मॉल बन भी गए, फिर वो मॉल बाद में ऑफिस कॉम्प्लेक्स बने। तो ये जो भेड़ चाल वाली जो ये मेंटालिटी है, ये थोड़ी सी अपने को संभाल के और थोड़ा सा रिसर्च एनालिसिस और समझदारी से अगर आगे चले तो मेरे ख्याल से ये चलता रहेगा। दूसरा पॉइंट मैं आप ही के पॉइंट में से लूंगी, ये जो एक जो रीच बढ़ाना पड़ेगा। अभी बहुत बहुत चैनल पार्टनर्स हैं और बहुत एसोसिएशंस हैं जो ये कर रहे हैं, लेकिन एक रीच बढ़ाना पड़ेगा, तो वो एक जरूरी हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपके साथ बहुत खुशी के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, हमारे ये जो हरदीप सिंह पुरी जी बहुत ही बढ़िया मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, ये जो नरेटको बॉडी है अंडर द एजेस ऑफ दिस मिनिस्ट्री, उन्होंने इस साल एक शुरू किया है नरेटको माही विंग। वो विमेंस विंग है ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ दिस रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है कि इसका मुझे फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट बनाया है, और ये मतलब मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ पोजीशन की वजह से नहीं, लेकिन जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं रियल एस्टेट में जो विमेन है और एलाइड इंडस्ट्रीज में भी जो विमेन है उनके लिए कुछ कर सकूं, उन्हें कुछ दे सकूं वापस। और तो इस पे हम लोग का खूब जबरदस्त वर्किंग चल रहा है, बहुत काम कर रहे हैं इस पे हम। और जब सच में आप मानेंगे नहीं, जब हम ढूंढने गए कि पोजीशंस फिल करने के लिए हमें इनफ नंबर ऑफ विमेन मिल जाए, आपने मंजू जी का नाम लिया था, वो तो ऑलरेडी नरेटको में है, बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करती हैं, तो ये इतनी गिनती की इतनी कम लेडीज हैं। तो आप सोचिए कि मतलब इतने साल हो गए इंडिपेंडेंस को, इतने साल से ये विमेन एजुकेशन पे इतना फोकस चल रहा है, उसके बाद भी नहीं हो पाया, तो कितना बड़ा हमारा भारी भरकम जिम्मेदारी है कि अब हम ट्रेन कर करके उनको इस तरह से इस इंडस्ट्री के साथ जोड़ सके। और आप सोचिए जो कंस्ट्रक्शन मजदूरी जो कर रही है वो विमेन है, हॉर्टिकल्चर लैंडस्केपिंग कर रही है वो विमेन है, आर्किटेक्ट्स विमेन है, लॉयर्स विमेन है, बैंकर्स विमेन है, होम लोन्स जो दे रही हैं, हमारे जैसे जो मेरे टाइप के कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई है वो विमेन है। लेकिन फिर भी कहीं पे कई वजहों की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाती और अपने शिखर तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो एक बीच में जो डीरेल हो जाता है, फिर ट्रैक पे लाना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नहीं, सुपर मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ डीप इनसाइट। और ये इंटरव्यू एंटायरली इंस्पिरेशन सबके लिए तो है ही, लेकिन इंडियन वुमेन्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब, सब वुमेन्स के लिए ये इंटरव्यू एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, जो इतनी डिटेल डेप्थ मैम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मैम एक और थोड़ा कोर सवाल पे जाते हैं कि टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज का मार्केट तो बहुत बड़ा कहा जाता है, लेकिन वहां पर अनऑर्गेनाइज्ड वर्क ज्यादा आपको देखने मिलता है। सो आपको ट्रेनिंग एंड कोचिंग, अभी जो कोर मैं बात करूंगा, कोई इंस्पिरेशनल ट्रेनिंग नहीं, कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं, टूल, स्ट्रेटजीज, फ्रेमवर्क्स रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर रियल एस्टेट कंपनीज को अवेलेबल हो, सो क्या रोल ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्ले करेगी आगे जाके रियल एस्टेट की ग्रोथ में? आपको क्या लगता है? देखिए, 3 चीजें जो हुई उन्होंने काफी हद तक तो सेक्टर को सुधार ही दिया है ना। डिमोनेटाइजेशन, रेरा और जीएसटी, ये 3 बहुत अच्छी चीजें हुई, जिससे कि काफी एक्सटेंट तक क्लीन अप हो चुका है अथॉरिटीज की तरफ से, तो काफी कुछ हो गया है। अब आप जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड रियल टाइम सिचुएशन की है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो ट्रेनर्स कहाँ पे हैं। यस, फिलहाल अगर आप देखें तो एक RICS है, वो कर रहे हैं जो रेडीमेड रियल एस्टेट का कोर्स करके और लोगों को, बच्चों को रेडी कर रहे हैं। अदर देन दैट अभी हीरानंदानी जी ने कुछ शुरू किया है बॉम्बे में, वो चल रहा है। लेकिन वो होता है ना, ट्रेन द ट्रेनर। पहले तो आपको अमोल जी, यू विल फर्स्ट हैव टू ट्रेन द ट्रेनर। यस, है ना। अगर मुझे खुद ही राजमा बनाना नहीं आता तो मैं क्या ही सिखाऊंगी अपनी कुक को राजमा बनाना। एकदम सही बात है कि नहीं। तो ये तो बहुत एक इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है रियल एस्टेट का, वो सिखाना पहले, और जिनको आपने सिखाया वो आगे सिखा सके। एक वो वीडियो अगर आपको याद हो,
उसे देख के आई हैड टीयर्स इन माय आईज, बिकॉज बच्चे बैठे हुए और टीचर पढ़ रही है वो FUTURE, फुटुरे, यस यस यस, फ्यूचर नहीं बोल पा रही थी वो, NATURE, नटुरे, नेचर नहीं बोल पा रही थी। तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं टीचर के लिए रो रही हूँ कि बेचारी इनको नहीं पता है, या जो 60 बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए रोना आ रहा है कि ये बेचारे जिंदगी भर ये फुटुरे नटुरे बोलते रहेंगे, कोई इन पे हंसेगा, ये कैसे वो करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रेन द ट्रेनर। आप एक फौज तैयार करें जहां आप कोई एक सर्टिफिकेशन का सिस्टम हो, आपका कुछ हो, जहां की ये लोग इस चीज में सिखाने के काबिलियत रखते हैं, फिर वो सिखाएं आगे जाके। नहीं तो टियर 2 टियर 3 में खाली सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को तो नहीं हो सकता ना, कि आप because you're looking good or you are dressed well, it means that your knowledge is also equally good. आप LinkedIn पे जाइए, बड़े खुशी खुशी लिखा होता है उसमें, फर्स्ट PhD in real estate, first PhD in real estate marketing, first PhD in real estate sustainability, sales, first PhD in green building। तो गिनती के तो है, तभी तो सब इतनी शान से लिख पा रहे हैं कि हम फर्स्ट हैं। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि ये सच है। आप एक कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, हर एक में ज्यादा नॉलेज होगी, रियल एस्टेट में नहीं मिलेगी आपको। मतलब इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा। जब तक हम बिजनेस कोचिंग नॉर्मल करते थे ना मैम, सो हो सकता है इंडिया में 1 लाख बिजनेस कोच मिले, लेकिन जब से हमने को रियल एस्टेट कोचिंग चालू की, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम लोग 6 महीने 8 महीने के मॉडल पे काम करते हैं। उस दिन के बाद से आज का दिन है, यहाँ आपके पास 20 लाख भी फॉलोअर्स हो तो शायद आप नहीं सर्च में मिलेंगे, लेकिन टचवुड ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद रहा कि अगर आप कोई गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करें कि बेस्ट रियल एस्टेट कोच एंड ट्रेनर इन इंडिया, तो हमारा चैनल आ जाता है, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन माइक्रो निश। तो रियल एस्टेट कोचिंग और ट्रेनिंग में लोगों ने ना रिसर्च की है ना काम किया है, तो फिर वो उसका फर्क तो पड़ता ही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि ट्रेनर्स को भी ट्रेन करने की जरूरत है, ताकि सही नॉलेज लोगों तक पहुंचे। मतलब सिर्फ इंस्टीट्यूट खोल देने से या डिग्री देने से नहीं होगा। आपके जैसे, मुझे तो 10-15 साल ही हुए, लेकिन आपके जैसे जो 30-35 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, इनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचाना, यही तो इस पूरे मिशन का पार्ट है जो इंटरव्यू हम आपके साथ ले रहे हैं। और मंजू मैम का भी इंटरव्यू शेड्यूल्ड है अभी कुछ दिनों में। तो ऐसे जो इंडिया के रियल लीडर्स है, इनका नॉलेज जब लोगों तक पहुंचेगा, तभी मुझे लगता है कि रियल एस्टेट का कोई रियल कोर्स बन पाएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। आखिरी सवाल, अभी रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसीज बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं या दिन डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, सो उनके लिए या एडवाइजर्स के लिए आप क्या फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे? मार्केटिंग एजेंसी जो रियल एस्टेट में काम करी उनके लिए या एडवाइजर्स के लिए आपके क्या? देखिए, जो मार्केटिंग एजेंसीज है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट सही तरीके से कर सके। हर प्रोडक्ट अगर सेम ही लग रहा है तो मार्केटिंग एजेंसी का रोल ही क्या रहा उसमें? तो एक हर प्रोडक्ट का एक यूएसपी होना चाहिए, और वो यूएसपी आप प्रोजेक्ट कर सके एक अच्छी तरह से, है ना। जैसे हम लोगों का विंड चांस है एक प्रोडक्ट, तो वो स्काई वॉक है एक बड़ा सा, वो एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए एक बहुत बढ़िया चीज है कि आप अपने बस घर से निकले और आप बिल्कुल 7th 8th फ्लोर पे जॉगिंग कर रहे हैं, सनराइज देख रहे हैं, सनसेट देख रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं मच्छरों की, सांप की, कि आप नीचे वॉक पे या कहाँ हैं। तो एक आप एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए वो स्काई वॉक। ऐसे ही हर डेवलपर जब बनाता है कोई प्रोजेक्ट, वो अपने काफी थॉट्स और ड्रीम्स और काफी कुछ उसमें डालता है। जो मार्केटिंग एजेंसीज है, सेलिंग एजेंसीज है, PR एजेंसीज है, वो इन डेप्थ अगर वो समझ ले, वो अलाइन हो जाए उस थॉट प्रोसेस के साथ, और अगर मिसिंग है वो चीज, तो वो अगर वो क्रिएट करवा सके, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। सुपर जी, बहुत बड़ी गोल्डन टिप आपने दी सभी एडवाइजर्स और एजेंसीज के लिए, कि हर प्रोजेक्ट को प्रमोट करने का एक यूनिक यूएसपी होना चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जिससे आप ये बता सके कि उसका डिफरेंशिएटर क्या है जो अलग दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं है, जो आप प्रमोट कर रहे हैं, वही आपकी खासियत है। थैंक यू सो मच मैम। थ्रू आउट दिस इंटरव्यू 1 घंटा हो चुका है, पर ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। और इतनी सारी अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं तहे दिल से, मेरी पूरी टीम आपका धन्यवाद देना चाहेगी कि आपने समय दिया, इतने अच्छे आंसर्स दिए। और
हम आशा करेंगे कि इन फ्यूचर में भी अगर हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो आपका साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे। डॉक्टर अमोल मौर्य जी, गोवर्धन पूजा पे इससे बढ़िया मैं क्या कहती हूँ, कर्म ही पूजा है। और इतना बढ़िया दो डॉक्टरों ने बात की है, तो कुछ ना कुछ बीमारी तो हम मिलके दूर करेंगे 100%। और मैं सच में बहुत आभारी हूँ इस यूनिवर्स का कि आपके जैसे अच्छे लोग डे बाय डे हमें मिल रहे हैं, जो इतना अच्छा नॉलेज शेयर कर रहे हैं कि कुछ तो गेम चेंज जरूर होगा। तभी पता नहीं बुक का नाम भी ऊपर वाले नहीं रख पाए कि रियल स्टेट गेम चेंजर्स के इंटरव्यू ले रहे हैं। और आप सच में गेम चेंजर्स है, क्योंकि आपने वैसे काम और वैसी स्टोरीज बिल्ड की है। हर वुमन ये वीडियो देख के एम्पावर जरूर होगी, और अभी आपको शायद कम वुमेन्स मिली होगी उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन आगे जाके ये इंटरव्यू देखने के बाद आपको जरूर अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। और आप भी हमें हेल्प करिएगा। विमेन जो तरक्की कर रही हैं, उनके सबके पीछे स्ट्रॉन्ग हेल्पफुल मेन लाइक यू आर स्टैंडिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ये हो भी रहा है। मेरी वाइफ का भी चैनल इज ग्रोइंग वेरी गुड। शी इज इनटू न्यूमेरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। और आपने सही कहा कि जब तक हमको एज अ हस्बैंड वुमेन्स का और वुमेन्स को एज अ हस्बैंड हमारा सपोर्ट ना हो तो कोई भी ग्रो नहीं कर सकता। जी। So it's a mutual thing. और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लर्निंग्स।